Okay, so today's topic is dynamic routing. All right, so in previous topics, we already have seen static routing. Okay, I have explained you two types of routings. Okay, very first was static routing and other was dynamic routing. थोड़ा सा क्विकली यदि हम डिस्कस करें स्टैटिक राउटिंग क्या था स्टैटिक राउटिंग दैट मींस वेयर एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू हैंड टाइप ऑल द नेटवर्क्स लोकेशंस इनटू द राउटिंग टेबल हर राउटर के राउटिंग टेबल में एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली रूट्स नेटवर्क्स ऐड करने होते थे दैट इज योर स्टैटिक राउटिंग फाइन that was your static routing. So for example, this router has got a routing table here and this is connected network, this is connected network, so this is not connected, so administrator has to add this network here manually, what we have seen using an IP route command. That's the static routing. Now second thing is whenever I do any changes, okay, so यहाँ पर मैंने एक नया network add कर दिया. This is let's say 10 20 30, this is 40 192.168.40.0, ये मैंने नया नेटवर्क ऐड कर दिया. तो राउटर 1 के लिए ये नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग हियर, बट फॉर राउटर 2 इट इज अ रिमोट नेटवर्क. सो राउटर 2 के राउटिंग टेबल में आपको इसको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा. मींस whenever any changes happens in your network, you have to manually updates to all other routers in your internet networks. That's the static routing. All right, ये static routing है. Static routing comparatively other routing protocol is more safe and more used routing method. All right, इसका administrative distance 1 है which is lowest one. So administrative distance क्या होता है, एक वैल्यू है जो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल को असाइन है और जिस प्रोटोकॉल की एडमिन वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ट्रस्टेड होता है. तो 1 इज द लोवेस्ट वन. ऑलराइट, so static routing is the most trusted routing method. All right, that is your static routing. Now the dynamic routing, which is topic today. So what is that dynamic routing exactly and how does it work, that we are going to see. उस दिन भी मैंने briefly explain किया था. Dynamic routing is what? It's a process of routing protocol. So in dynamic routing, what we do, we run a routing protocol. On every router, we run a routing protocol. So every router will have a routing protocol. Every routers will have a routing protocol. And these routing protocols automatically exchange their routing informations with the neighbor. Okay, ये routing protocol क्या करता है, अपना local routing table इसके पास होता है जो static में भी होता है same. What is that? That means like every router knows their connected network. इस router को पता है मेरे connected network कौन है, this is C, this is C. ये उसका लोकल राउटिंग टेबल हो गया. तो ये क्या करेगा, अपना लोकल राउटिंग टेबल अपने नेबर को सेंड कर देगा. अब इसके पास राउटर 2 के पास अपना खुद का लोकल राउटिंग टेबल है और जो नेबर से आया मतलब राउटर 1 से आया वो भी अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा, मर्ज कर देगा और इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई. फिर ये अपना टेबल इसको भेज देगा अपने नेबर को. ये देखेगा कि मेरे पास एग्जिस्टिंग क्या है और क्या नहीं है, जो नहीं है और R2 से आया है वो अपने टेबल में अपडेट कर देगा. दैट्स ऑल. दिस इज हाउ automatically they exchange routing informations to each other. They exchange routing informations to each other automatically and update their routing table. All right, so that's the dynamic routing. अच्छा, दूसरा एडवांटेज डायनेमिक राउटिंग का क्या है, व्हेन यू मेक एनी चेंजेस. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक नया नेटवर्क ऐड किया 192.168.40.0. जैसे ही मैंने नया नेटवर्क ऐड किया, ये राउटर क्या करेगा, अपने टेबल में अपडेट तो हो जाएगा क्योंकि इसके लिए ये कनेक्टेड है और ये उस चेंजेस को ऑटोमेटिकली अपने नेबर राउटर को एक्सचेंज कर देगा. ओके, इसके आगे यदि कोई राउटर लगा हुआ है
तो ये राउटर उसके आगे के नेबर को सेंड कर देगा, इसके आगे और कोई राउटर लगा हुआ है वो उसके आगे के नेबर को सेंड कर देगा, ऐसे ऑटोमेटिकली वो अपडेट सारे राउटर्स तक पहुंच जाएगा। मींस एडमिनिस्ट्रेटर need not to manually update every router, they only have to enable routing protocol, that's all, that's all. This is dynamic routing. अब dynamic routing में ये task कौन करता है? There are various routing protocols. Okay, for example, let's say RIP is one of the protocol, EIGRP is the protocol, IGRP, OSPF, BGP, ISIS, ODR, and so on. So there are so many routing protocols. So every routing protocol has got a different methods to work. Okay, it is up to you which protocol you are using. All right, so if you are using RIP routing protocol, it has a different method to work. If you are using EIGRP protocol, it has a different algorithm to work. OSPF has got a different algorithm. BGP protocol has got a different algorithm. ISIS has got a different algorithm. Every protocol has got a different mechanism altogether to work, and these protocols works accordingly. ओके, सो अब हम सीखेंगे एक्चुअली CCNA सिलेबस में दो ही तरह की राउटिंग है, एक है स्टैटिक राउटिंग एंड अनदर वन इज योर OSPF राउटिंग. So your CCNA part is OSPF and static routing already हमने देखा है, but add on I will teach you RIP and EIGRP also because these all are very very important routing protocols. Okay. So before moving forward to the routing protocol, we first must understand the routing protocol common characteristics of the routing protocol that we need to understand first. All right. So dynamic routing protocols, when any protocols are used to find out the network, they update their routing table automatically. Okay, and dynamic routing protocols का दूसरा concern क्या है? Dynamic routing protocol defines the sets of rule. Let me write down here. Dynamic, आप लोग notes बनाते रहेंगे. Dynamic routing protocol defines the sets of rules. Okay, defines the sets of rules used by routers. Okay, when it communicates and share routing information to each other. All right, so that's the dynamic routing in shortly we call. So अब dynamic routing protocols क्या है? Dynamic routing protocol that means a sets of rule. Protocol means a sets of rule होता है. Okay, और ये protocol किस लिए बनाया है, उसका main motive क्या है dynamic routing protocol का, कि आपके multiple routing protocols, if you have these routing protocols, so how this one router should communicate to the other router, how this one router should exchange its own routing informations to each other. एक राउटर अपने दूसरे नेबर से कैसे कम्युनिकेट करें और कैसे अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशंस को शेयर करें, ये लॉजिक ही प्रोटोकॉल है. ओके, दैट लॉजिक इटसेल्फ इज ए प्रोटोकॉल. ओके, नाउ अब ये डायनेमिक राउटिंग और इसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं. तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों बने हैं? क्योंकि हर प्रोटोकॉल का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर प्रोटोकॉल का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मैकेनिज्म है वर्क करने का. सो दैट इज व्हाई दिस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, देयर आर 20-30 protocols are available. So this protocols actually has got divided into 3 different categories. Okay, so classes of routing protocol. All right, so classes of routing protocol. So what are those classes? Very first class is distance vector.
Distance vector is the one type of you know routing protocols. Another one is link state. लिंक स्टेट टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं. एंड थर्ड वन इज बैलेंस्ड हाइब्रिड. Balanced hybrid routing protocols. So these all are mainly three types of, जितने भी protocols हैं वो सारे इन तीन types में divided है. Okay, as many routing protocols you have, all these routing protocols are divided into these three types. Perfect. Distance vector, link state, and balanced hybrid. So let's understand what are those protocols and how does they are different to each other. ये protocols के categories एक दूसरे से अलग कैसे हैं और क्यों है ये हम discuss करते हैं. सबसे पहला distance vector. Very shortly I am discussing you and then I will explain you in depth in detail again. So सबसे पहला distance vector. So distance vector routing protocol determine the direction and vector the distance. Okay, distance मतलब distance और vector मतलब direction. तो ये दो फैक्टर पर काम करता है. ओके दो फैक्टर पर कैसे काम करता है देखो. Assume that this is my network. Let me make it little small. That's cool. I want to drag it below. Yeah, like that. Okay, so like this, let me take few more routers here. Okay, so I got this routers. I do not have additional port. दो ही port है, दो occupied है. Let me add few more. One. Let me take one more. Two. That's cool. Here also the same thing. Let me take few more. One and two. Okay. Now what I'll do is let me connect this to this to this. Okay, now below here I have many networks. Assume that I have many network or okay, let it be. Okay, now assume that here what I have a one router here and which is connected to this router and also connected to this router. Okay, and here I have a network, let's say 192.168.40.0. This is 40.0/24 network. Okay, now here in this case this router 1 want to communicate with this network. So distance vector routing protocol का algorithm कैसे काम करता है, यहाँ पर दो factors है इसके अंदर. Okay, so पहला factor है distance. Distance से meaning क्या है, किलोमीटर
या राउटर कैलकुलेट करता है ओके यहाँ से ये राउटर कितना किलो इस रूट में कितना किलोमीटर है और इस रूट के थ्रू कितना किलोमीटर है. Not that. Here kilometer, here distance means hop count. Hop count. Hop count मतलब वाया राउटर्स. तो ये आपका क्या हुआ सोर्स और ये राउटर क्या है आपका डेस्टिनेशन. तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने वाया राउटर्स है. ओके वाया राउटर्स. तो यहां से यहां तक के बीच में इस रूट में वाया राउटर कितने हैं 0. इस रूट में वाया राउटर कितने हैं 1. ये एक राउटर वाया हो गया ये एक हॉप हो गया. तो किस रूट में लोवेस्ट नंबर ऑफ हॉप्स है इस रूट में तो वो इस रूट को प्रेफर करेगा. ओके अब ये तो हो गया डिस्टेंस. नाउ वेक्टर. वेक्टर मतलब क्या होता है डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब क्या अब उसको पता है कि मुझे इस रूट से जाना है इस रूट से. ओके तो कौन सा इंटरफेस ये वाला इंटरफेस कौन सा है F0/0. ये वाला इंटरफेस कौन सा है F0/2. ये 1 है तो ये 2 हो गया. तो इस राउटर को क्या डिसाइड कर रहा है कि मुझे इस रूट पे जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा. सो आई हैव टू चूज दिस इंटरफेस दिस वन. Okay, I have to choose this interface this one. So this is F0/2. So that is direction. ओके तो ये दो फैक्टर्स पर काम करते हैं डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल. डिस्टेंस दैट मींस किस रूट में लेस नंबर ऑफ हॉप्स है और डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन चूज करना है उस रूट पे जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन चूज करना है. ये दो फैक्टर्स पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते हैं. और इसके एग्जाम्पल डिस्टेंस वेक्टर के एग्जाम्पल्स कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल RIP इज द प्रोटोकॉल, IGRP is the protocol, BGP is the protocol. These all are a distance vector routing protocol. ये distance vector की mechanism पर काम करते हैं. Understood? Okay. Now let us understand. Let me write down one line about this so that this will be a note for you. Distance vector. Okay. Distance vector routing protocol approach determine the distance and vector direction. Okay, to any link in the इंटरनेटवर्क. ओके आपके पूरे इंटरनेटवर्क में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का फोकस किस पर होता है. डिस्टेंस मतलब कौन से रूट का डिस्टेंस सबसे कम है. यहां पर डिस्टेंस से मीनिंग क्या है हॉप काउंट. और डायरेक्शन. डायरेक्शन से मीनिंग क्या वेक्टर से मीनिंग है डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स एन इंटरफेस कि मुझे उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा इंटरफेस राइट इंटरफेस है. दैट इज अ डिस्टेंस वेक्टर. नाउ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. अब इसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे. कौन से एग्जांपल्स. examples like RIP, like IGRP, like BGP. These all are few examples of this type of category. Now link state routing protocol. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का अप्रोच क्या है. जैसे मैंने बताया लिंक स्टेट अप्रोच रिक्रिएट द एग्जैक्ट टोपोलॉजी ऑफ इंटायर इंटरनेटवर्क. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है पूरे नेटवर्क का पूरे इंटरनेटवर्क का मैप क्रिएट करता है. इट क्रिएट इंटायर इंटरनेटवर्क मैप और उस मैप को देखकर फिर हमेशा रूट डिसाइड करता है. डिस्टेंस वेक्टर वैसा नहीं करता है. डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है एवरी टाइम इट फाइंड्स आउट ओके हर बार जब इसको कोई नया नेटवर्क कम्युनिकेट करना है तो उसको ढूंढता है कि वो नेटवर्क किधर है. अब ये राउटर है इससे ये कनेक्टेड है इससे ये कनेक्टेड है. डिस्टेंस वेक्टर राउटर ऑलवेज एवरी टाइम जब इसको इस नेटवर्क में जाना है तब जाकर वो ढूंढेगा उसको.
तब जाकर उसको वो ढूंढेगा और सर्च करेगा। बट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? जैसे ही आप राउटर्स को ऑन करते हो, ये अपने पूरे नेटवर्क का मैप क्रिएट कर लेता है। इट क्रिएट्स इंटायर इंटरनेटवर्क मैप। सपोज ये आपका लार्ज नेटवर्क है, तो ये पूरे नेटवर्क का मैप पहले क्रिएट कर लेता है। ओके, अब कोई बताए मुझे इंडिया का मैप कैसे बनता है? किसने बनाया है इंडिया का मैप? हु मेड दैट? दिस इज अ क्विक क्वेश्चन। ओके, हु मेड दिस मैप? चलो संदीप बताइए, इंडिया का मैप कैसे बना? कैसे, किसने डिसाइड किया कि भाई ये इंडिया का मैप है? नो आइडिया। हाँ अनीशा बताइए। यस संदीप, स्पीक, स्पीक आउट। नेक्स्ट, दिव्या यू टेल मी, मैप कैसे बना? कंट्री का मैप कैसे बना? कैसे बनता है? जेम्स रेनल ने बनाया इंडिया का मैप? ऋषिकेश ने बताया जेम्स रेनल ने बनाया। ठीक है, किसी ने भी बनाया होगा। मतलब जेम्स रेनल के पहले इंडिया नहीं थी क्या? भारत का नक्शा नहीं था? बड़े फैन हो यार अंग्रेजों के। ये अंग्रेज और ये सब लोग कल वाली बात है, और भारत कई सदियों वाली बात है। सर एक्चुअली वो महाभारत में बताया था कि तभी मैप बनाया था, पर कैसे वो नहीं पता। हम्म। और कोई, और कोई विद्वान? कैसे मैप कैसे बनाते हैं? किसी कंट्री का मैप कैसे बनता है? या किसी स्टेट का मैप कैसे बनता है? ये जो मैप्स आप देखते हो, ये कैसे बना? ये मैप बनाया गया है तो ये किसने ऐसे डिजाइन की? किसी कलाकार ने, किसी पेंटर ने डिजाइन कर दी क्या? हु मेड दिस डिजाइन? ये वाकई में ऐसा नक्शा है, ऐसा देश है हमारा, कि ये कोई डिजाइन है? तो किसी ने पहले सैटेलाइट पे, दूरबीन पे जाकर फोटो खींचा होगा, फिर उसके हिसाब से ऐसे लाइन खींची है। फिर ये स्टेट के लाइंस किसने खींच दिए, किसने बना दिया? है ना भाई? सवाल है कि नहीं? हु मेड दिस? अरे कैसा होगा रे? ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये जनरल नॉलेज की 10th के पहले पढ़ी हुई और समझी हुई चीजें होनी चाहिए। जियोग्राफिकल एरिया टेकिंग इन कंसिडरेशन। जियोग्राफी, ये ऋषिकेश ने आंसर किया है, जियोग्राफिकल एरिया टेकिंग इन कंसिडरेशन। कौन कौन ऐसा है जिसको ये समझ में आ गया इससे, इस बात से? तो वो थ्री इडियट वाला मूवी आपने देखा है ना, जिसमें आमिर खान बताता है मशीन क्या होता है? चेन, चेन का एग्जाम्पल। बस वैसा ही है। और कोई भी आंसर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, तो उसको गूगल नहीं करना है।
अरे सिंपल है, ये मैप बनता कैसे है? ये मैप बनता है, मिटाओ उसको तुरंत, फरदीन मिटाओ जल्दी। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। तो ये बनता कैसे है, मैप कैसे बनता है, देखो मैं समझाता हूं आपको। ओके, हर एक, सपोज आपके गांव का एग्जांपल ले लो, तो आपके गांव का, आपका खेत कितना बड़ा है, आपका प्लॉट कितना बड़ा है, उसका नक्शा कौन बनाता है? उसका नक्शा बनाता है कौन? तलाठी, पटवारी, आपके गांव का पटवारी। ओके, तो उसको क्या पता आपका लोकल एरिया, ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, फिर उसके बाजू में वो रमेश का प्लॉट है, ये फिर उसके बाजू में ये सुरेश का है, इससे इतना हेक्टर, फिर यहाँ पे गोपीनाथ का है, फिर यहाँ पे चंद्रेश का है, फिर यहाँ पे श्यामराव का है। ये ऐसे उसके पास अपने तालुके का, एक तालुके में भी संभाग होते हैं, एक एक संभाग में एक एक पटवारी होगा। तो ये एक पटवारी है एक तालुके में, उसने अपने संभाग का, ये उसको पता है ना, उस गांव में 50 लोग हैं तो उनकी हर एक की जमीन नापता है कि नहीं हो, तो उसके हर एक के प्लॉट की, हर एक के जमीन का ये मैप है। ऐसा ये इसका, ये श्यामराव का, ये गोपीनाथ का, ये मूलचंद का, ये ध्यानचंद का, ये ऐसे प्लॉट है, ये उसने ये मैप बन गया। तो ये मैप क्या क्या है, उसके संभाग का। ओके, फिर दूसरा पटवारी है, उसने अपने संभाग का मैप बनाया है, तो उसने अपना मैप इसको जोड़ दिया। ओके, तीसरे ने अपना जोड़ दिया। तो ये एक पटवारी अपना मैप लेकर जाएगा, दूसरा पटवारी अपना मैप लेकर जाएगा किसके पास? अपने बॉस के साथ। तो इन पटवारियों का बॉस कौन है? तहसीलदार। तहसीलदार। तो ये तहसीलदार क्या करता है, ये एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा संभाग, चौथा संभाग, उसके तहसील में 4 संभाग है, तो उसने चारों के मैप जोड़ दिए, ये बन गया उसके तहसील का मैप। ये तहसील जो भी है, तालुका जिसको बोलते हैं। फिर हर तालुके का तहसीलदार अपने अपने तालुके का मैप लेकर किसके पास जाता है? कलेक्टर के पास। फिर वो कलेक्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 10 तालुके हैं, तो वो 10 तालुके के मैप ऐसे जोड़ देगा, ये तालुका 1, ये तालुका 2, ये तालुका 3, वो उसने जोड़ दिया, तो ये डिस्ट्रिक्ट का मैप बन गया। फिर हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप लेकर कहाँ जाता है? सीएम के पास। सीएम क्या करता है, उस हर डिस्ट्रिक्ट के मैप को एक दूसरे से जो, अच्छा ये आपका सातारा तालुका है, तो ये उसके आगे का कोल्हापुर तालुका है, तो वो अपना उसके आगे ऐड कर देगा, उसके आगे, तो हर तालुके के ऐड मैप जोड़ देगा, तो ये बन जाएगा आपका स्टेट का मैप। और ये स्टेट का मैप लेकर हर एक सीएम जाता है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री हर स्टेट की मैप को जोड़ देगा, तो बन जाएगा इंडिया का मैप। ऐसा करके नक्शा बना है। और वो एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि उसका एक प्लॉट आपका 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उसका नक्शा है, फिर दूसरे का 500, ऐसा कर करके छोटे छोटे नक्शे जोड़ जोड़ कर ये बना हुआ है। दिस इज एन एक्यूरेसी। और वो हर एक आदमी अपना अपना मैप लाता है और जोड़ता जाता है, और ये पूरा एक बड़ा मैप बन जाता है। उस तरह से ये आपका इंडिया का मैप बना। इसमें कोई साइंस है क्या? अंग्रेजी आकर बनाकर देगा तभी बनाओगे? ये उसके, अब ये देखो, उसको ब्रेक कर दो, स्टेट मैप, ये अलग अलग स्टेट्स के मैप्स हर एक सीएम ने ला ला कर जोड़ दिए हैं, स्टेट के मैप। उसके बाद आप लेट्स से डिस्ट्रिक्ट मैप, ये लाकर, ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट, ये सीएम ने ये सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिए उसके मैप को। फिर डिस्ट्रिक्ट के मैप में आप देखोगे कि कोई अब एक डिस्ट्रिक्ट का मैप, लेट्स से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मैप, फिर ये एक डिस्ट्रिक्ट के मैप के अंदर ये तालुके हैं। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट के मैप के अंदर ये तालुके हैं कई सारे।
उसके बाजू में ये नासिक का मैप है, फिर जलगांव का मैप है। अब ये बड़ा दिखने दो, फिर मैं और उसको ड्रिल डाउन करके बताता हूँ। अब ये है, ओके। अब सपोज ये तालुके हैं, कन्नाड। अब ये कर्नाटक का मैप आ गया, ये उसमें फिर ये छोटे छोटे गांव, गांव का मैप, फिर किसी गांव को पकड़ लोगे तो उस गांव का एक एक प्लॉट का मैप आ जाएगा। बस ये उसी तरह से जुड़ जुड़ कर ये अभी एक एक प्लॉट का, एक एक खेत का मैप आ जाएगा, एक एक गांव का मैप, कौन सा गांव का कितना है ये। फिर उस गांव को ड्रिल डाउन करोगे तो वो एक एक प्लॉट आ जाएगा। बस ऐसा है, ऐसा कर करके जुड़ के वो एक्यूरेट मैप बना है। तो ये सपोज समझ लो कि ये एक स्टेट, एक तालुके का मैप है। उसी तरह से हर राउटर का अपना मैप, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसको पता है। तो हर एक राउटर का अपना मैप, ओके। और ये अपने मैप एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। दीज गाइज, दीज राउटर्स आर एक्सचेंजिंग देयर मैप्स टू ईच अदर। एवरी राउटर एक्सचेंज देयर मैप टू ईच अदर। और हर राउटर क्या करता है कि अपने नेबर से मिला हुआ मैप अपने मैप को जोड़ देता है, ओके। अब यहां पर समझो थोड़ा सा एग्जांपल, डिस्टेंस लिंक स्टेट को समझ लो, इसकी वर्किंग प्रोसेस अलग है। अब यहां पर क्या होगा, ये एक 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 राउटर मतलब एक कलेक्टर है। तो इस कलेक्टर ने, इसके पास अपना मैप तो है ही, इसने अपना मैप अपने नेबर को भेज दिया कि हे भाई तू मेरा मैप मैप ले ले और तेरा पूरा कंप्लीट मैप बना, तू भी ले ले, तू भी बना, ओके। अब इसने जब मैप ले लिया तो इसका अपना मैप और अपने नेबर से आया हुआ मैप जोड़ दिया, तो ये बन गया इसका ये। फिर इसको इसके नेबर ने भी दिया है, उसका भी मैप जोड़ दिया इसने, तो ये बन गया ये, इसके भी नेटवर्क आ गया, इसने भी उसको भेज दिया, उसका भी जोड़ दिया इसने ये। अब ये क्या करेगा, ये अपना मैप, ये वाला अपना मैप इसको भी भेज देगा, और जो नेबर से आया है वो भी, ये पूरा इंटरनेटवर्क मैप इसको भी भेज देगा। ये राउटर कंपेयर करता है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, मेरे पास अपना लोकल मैप है, किस किस का नहीं है उसका अपने अपने टेबल में ऐड करता चला जाएगा। उसी तरह से इसको भी भेज देगा, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है। सब एक दूसरे को अपने अपने मैप्स भेज देते हैं, और वो अपने अपने मैप्स आपस में जोड़कर पूरे इंटरनेटवर्क का एक इंटरनेटवर्क मैप बोलते हैं इसको, इंटरनेटवर्क मैप। ये इस तरह से मैप बना लेते हैं। अब आपके पास एक बार इंडिया का मैप है। डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है मैं बताता हूं आपको, ओके। डिस्टेंस वेक्टर एक कलेक्टर है, समझ लो ये कलेक्टर है, और इसको जाना है यहां पर, इसको जाना है इस नेटवर्क में 50.0 में। तो ये देखता है कि मेरे पास कितने रोड रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, तो इस एक रास्ते से तहसीलदार को भेजेगा, जा रहे तो इस रास्ते से जाकर यहाँ पे पहुंच, औरंगाबाद पहुंच। इसको बोलेगा तू इस रास्ते से जाके औरंगाबाद पहुंच और वापस आ, और बता मेरे को तेरा रास्ता कैसा था। ये जाता है इस रास्ते से औरंगाबाद जाता है, वापस आता है, कल इसको बोलता है कलेक्टर सर ये 150 किलोमीटर है और ऐसा ऐसा रास्ता है। यहाँ से आदमी जाता है, ये बताता है सर ये जो है ना 140 किलोमीटर है और ये रास्ता ऐसा ऐसा है। अच्छा, फिर ये डिसाइड करता है ओके कौन सा छोटा कम शॉर्ट है, ये है, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। ऐसा डिस्टेंस वेक्टर वर्क करता है। लिंक स्टेट क्या वर्क करता है, लिंक स्टेट एक बार पूरा मैप बना लेता है, उसके बाद किसी को भेजता नहीं है, वो अपने मैप को देखता है बस, ओके मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये मैप में मुझे दिख रहा है रास्ता, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ज्यादा बेटर है,
तो वो मैप को देखकर अपना रास्ता डिसाइड करता है। डिस्टेंस वेक्टर हर बार नहीं भेजता है। डिस्टेंस वेक्टर, अब यहाँ पर मुझे नासिक में जाना है, तो नासिक के को ढूंढने के लिए जितने रास्ते उतने रास्ते पर एक एक आदमी भेज देगा। ओके, फिर वो ढूंढ कर आएगा। तो ऐसा करता है, एक बार एक नेटवर्क ढूंढेगा, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख देगा, फिर अगली बार उसको नहीं ढूंढेगा खैर, बट एक बार तो ढूंढेगा। बट डिस्टेंस लिंक स्टेट ऐसा भी नहीं करता है। जब आपने राउटर ऑन किया तभी ये पूरे नेटवर्क का मैप बना लेता है और मैप अपना स्टोर करता है। अब जिस किसी नेटवर्क में जाना है वो सिर्फ उस मैप को रेफर करता है, तो उसका प्रोसेस क्या हुआ, क्विक हुआ। ओके, और ज्यादा स्टेबल प्रोसेस हुआ। अच्छा, जब भी कोई नया चेंज होगा, जब भी कोई नया चेंज होगा, नया नेटवर्क ऐड हुआ, तो ये राउटर क्या करेगा, उस नए चेंज के बारे में अपने नेबर्स को अपडेट कर देगा। ये इसको अपडेट कर देगा, ये इसको, ये उसके आगे, ये उसके आगे, ऐसा करते करते सब तक वो अपडेट की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ओके, तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट ज्यादा प्रेफर किए जाने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि इसकी प्रोसेस, इसका इंटरनेटवर्क मैप, इसका लॉजिक ज्यादा बेटर है। हर बार वो ढूंढने नहीं निकलता है, हर बार वो डिस्कवर नहीं करता है। ओनली वंस व्हेन यू स्टार्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, व्हेन यू स्टार्ट राउटिंग, इट डिस्कवर द नेटवर्क एंड बिल्ड द टेबल, दैट्स ऑल। then it only prefer that table and communicate. This is a link state. I hope you guys understood now. Let me write down here. Link state क्या है? So link state, इसका अप्रोच क्या है? Link state approach recreate. Okay, the exact topology of the entire internetwork for root computation. ओके, ये रूट कंप्यूटेशंस के लिए पूरे इंटरनेटवर्क का एक बार में मैप क्रिएट कर लेता है। ओके, ऑलराइट, नाउ एग्जांपल प्रोटोकॉल्स है इसके OSPF, ISIS, NLSP, ये सारे कुछ इसके प्रोटोकॉल हैं। ओके, अच्छा, बैलेंस्ड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? सो बैलेंस्ड हाइब्रिड इज नॉट एनी न्यू टाइप, ये कोई नया टाइप नहीं है। बैलेंस्ड हाइब्रिड इज नॉट ए न्यू टाइप। ओके, बैलेंस्ड हाइब्रिड क्या है? इट्स ए कंबाइन एस्पेक्ट्स of the link state and distance vector. Okay, all right, so balanced hybrid is the combined aspects of the link state and distance vector routing protocol. It means ये दोनों के combination जैसा काम करता है। ये as a balanced hybrid भी काम करता है, सॉरी, as a link state भी काम करता है, और as a distance vector भी, ये दोनों के तरह काम कर सकता है। ऐसा routing protocol balanced hybrid है। For example, EIGRP, we do not have many example for balanced hybrid routing protocol, but EIGRP is the best example for balanced hybrid routing protocol. ये हमने अंडरस्टैंड किया शॉर्ट में। अब हम चलते हैं फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ, इन डिटेल। सो डिस्टेंस वेक्टर फर्स्ट। This is very big subject, you know. If I want to drag it, if I want to explain in the depth of the routing protocol, then it's big. यदि मुझे सिर्फ CCNA के हिसाब से बताना है तो हो गया खत्म। ओके, अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओके, लेट मी राइट डाउन हियर, सो आपको समझ में आएगा। Okay, so its key characteristics is just like very first key characteristic is, पहली चीज क्या है?
distance vector, okay, algorithm pass complete routing table with neighbor router. आपको नोट्स लिखने हैं अपने, मैं बता दे रहा हूं. सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पास कंप्लीट राउटिंग एल्गोरिदम विथ इट्स नेबर. समझो यहां पर क्या है. ऑलराइट, सो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है. तो यहां पर क्या होगा, हर एक राउटर क्या करेगा, एवरी राउटर विल पास इट्स ओन कंप्लीट राउटिंग टेबल टू द नेबर राउटर. समझो, इट मींस ये राउटर है, इसका ये राउटिंग टेबल है. तो ये क्या करेगा, अपना कंप्लीट राउटिंग टेबल अपने नेबर को दे दे पास कर देगा. ये अपना कंप्लीट राउटिंग टेबल इसको भेज देगा. इसके आगे यदि और कोई नेबर है तो फिर ये अपना राउटिंग टेबल इसको भेज देगा, ये अपना इसको भेज देगा, ये उसके आगे फॉरवर्ड करेगा. ऐसे एवरी राउटर एक्सचेंज इट्स कंप्लीट राउटिंग टेबल टू इट्स नेबर राउटर. ओके, और जो राउटर रिसीव करता है वो क्या करता है, अपने नेबर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अपने राउटिंग टेबल में मर्ज करता जाता है, ऐड करता जाता है. इसने R1 से जो रिसीव किया उसने अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर दिया, फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा. फिर इस ये क्या करेगा, अब R2 से जो रिसीव हुआ है वो अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेगा, और उसके आगे और कोई राउटर है तो उसको भी फॉरवर्ड कर देगा. ये राउटर का एक्चुअली कैरेक्टर है डिस्टेंस वेक्टर में. अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड ऑटोमेटेड मेथड. बट इससे एक प्रॉब्लम होता है, इससे आपके नेटवर्क में एक इश्यू क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग बाय रूमर. यहां पर क्या होता है, सपोज मैंने कोई फेक नेटवर्क इस राउटर पर ऐड किया, इसकी राउटिंग टेबल में एक फेक नेटवर्क ऐड किया जो रियलिटी में है ही नहीं. यहां पर इस राउटर के पास कोई 90.0 वाला नेटवर्क ही नहीं है, लेकिन मैंने राउटिंग टेबल में कमांड से फेक नेटवर्क ऐड कर दिया. तो ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल इसको भेज देगा, तो इसके पास भी आ गई वो फेक एंट्री. ये राउटर क्या करता है, नेबर से आया है बोल के ये अपने राउटिंग टेबल में उसको ऐड कर देगा. उसको कभी क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है कि वो नेटवर्क रियलिटी में एग्जिस्ट है या नहीं है. इट बिलीव्स ऑन दी routing information received from the neighbor and add it. उसके आगे फिर ये इसको भेज देगा. ये भी अपने नेबर से आया है समझकर अपने राउटिंग टेबल में ऐड करता है और आगे भेज देता है. सो एवरी राउटर कीप एडिंग दिस इंफॉर्मेशन विदाउट एक्चुअली वेरीफाइंग. दिस इज कॉल्ड राउटिंग बाय रूमर. दिस इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन. ओके, इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज अ राउटिंग बाय रूमर इन डिस्टेंस वेक्टर. routing by rumor. Okay, so routers receives routing info from neighbors and add into routing table without verifying it. It's called routing by rumor. सो एवरी राउटर क्या करता है, बिना किसी नेटवर्क को वेरीफाई किए जो भी इंफॉर्मेशन उसको नेबर राउटर से मिल रही है उसको अपने राउटिंग टेबल में ऐड करता करता जाता है, बट एक्चुअली कभी वेरीफाई नहीं करता है कि ऐसा कोई नेटवर्क है क्या. देयर इज नो मैकेनिज्म टू वेरीफाई दैट. सो इस तरह की प्रॉब्लम को, इस तरह की सिचुएशन को राउटिंग बाय रूमर कहते हैं. दैट इज राउटिंग बाय रूमर. परफेक्ट. ओके, दैट इज ए राउटिंग बाय रूमर. Okay, now next characteristics of distance vector routing protocol. So अब यहाँ पर condition क्या आ गई, if it is possible to have that network has a multiple link for the same remote network, then what it will do. If it is possible to have multiple routes for the same remote network. Okay, समझो यहाँ पर.
यदि इस राउटर के पास यहां पर जाना है, इसको इस राउटर के पास जाना है, दिस इज R3, R1, R2, ओके। यहां पर नेटवर्क है, दिस इज 192.168.40.0/24। राउटर 1 को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है। तो राउटर 1 को क्या दिख रहा है, यहां पर मल्टीपल पाथ दिख रहे हैं। मेरा कंडीशन क्या था, इफ इट इज पॉसिबल टू हैव a network that has a multiple links or multiple routes to go there, okay, then in this is the case, if this is the case, then then how does it choose, यदि इस राउटर को यहां पर जाना है, ओके, तो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर 1 को क्या है, कैसे मिली, राउटर 3 ने अपने अपडेट इसको भेजे हैं, तो इसको यहां से मिली है, F0/2 इंटरफेस पर मिली है, और इसने इसको भेजा है और इसने इसको भेजा है, तो इसको यहां से भी वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, इधर से भी मिली है, इधर से भी। तो राउटर 1 किसको बिलीव करेगा, जो वाया R3 आ रही है उस पर बिलीव करेगा, कि वाया R2 आ रही है इंफॉर्मेशन उस पर बिलीव करेगा। सो इफ दिस इज द केस, देन इट फर्स्ट चेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, administrative distance. What is this administrative distance? Administrative distance क्या होता है, every routing protocol has got a value, okay, let me write down here, AD. Administrative distance is a value assigned to each routing protocol which is used to rate the trust worthiness of routing protocol. ऑलराइट, सो डिस्टेंस वेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, हर एक प्रोटोकॉल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की हुई है, और वो वैल्यू बताती है कि कौन सा प्रोटोकॉल कितना ट्रस्टेड है, ओके। लोवेस्ट इज बेटर, ओके, जिस प्रोटोकॉल का एडी सबसे लोवेस्ट होगा वो बेटर है। अब जैसे प्रोटोकॉल और उनका एडी, okay, there are many protocols and their ADs. I will give you few, like static routing का AD मैंने बताया था 1 है, okay। Now then let's say EBGP routing protocol का AD 20 है, okay। Then EIGRP का AD 90 है, then IGRP का AD 100 है, ओके। OSPF का AD 110 है, ओके। ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल का AD 115 है, ओके। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल का AD 120 है, ओके। ODR मैंने बताया था, ODR प्रोटोकॉल का AD जो है वो 160 है, ओके। एक्सटर्नल EIGRP का AD 170 है, ओके। IBGP का AD जो है वो 200 है, ओके। एंड unknown protocols का AD 255 है। so these all are few ADs, you need to remember at least this one। तो देखो अब यहाँ पर जिस प्रोटोकॉल का AD सबसे कम होगा वो प्रोटोकॉल उतना बेटर। तो अब ये कंडीशंस आ गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या देखता है, अब ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी राउटर के पास 2 रूट अवेलेबल है
और उसको चूज करना है कि उसमें से उसको कौन सा रूट बेस्ट है। तो ये अब सपोज यहाँ पर ये रूट ये लर्न कर रहा है लेट्स से RIP प्रोटोकॉल से, और ये रूट लर्न कर रहा है लेट्स से EIGRP से। तो RIP का AD है 120, EIGRP का AD है 90, तो ये क्या देखेगा, लो किसका है, इसका। तो ये यहां से आने वाली इंफॉर्मेशन को बिलीव करेगा, इस रूट को ही प्रेफर करेगा हमेशा। ओके, इट विल प्रेफर दिस रूट ऑलवेज, क्योंकि यहां से आने वाले प्रोटोकॉल का AD लो है। ठीक है, दिस इज द कंडीशंस। ओके, तो यहां पर लिखता हूं मैं, ओके, कंडीशन if multiple routes exist for same destination, then it first prefer administrative distance. ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को पहले प्रेफरेंस देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बेस पर ये रूट डिसाइड करेगा, जिस साइड के प्रोटोकॉल का AD लो है उसको प्रेफर करेगा। नाउ condition 3 is if I have a same protocol at the both end, then what will happen? So if I have a here also I have a RIP and 120, तो इधर से भी RIP है 120 है, इधर से भी RIP है 120 है। अब क्या करेगा ये राउटर, अब कैसे डिसाइड करेगा? Then it will, if administrative distance is the same, then it will have to use a metric. It will have to use a metric of each routing protocol. तो फिर ये राउटिंग प्रोटोकॉल का मैट्रिक देखेगा, यहां पर भी RIP है, यहां पर भी RIP है, तो फिर ये कैसे डिसाइड करेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स के बेस पर। व्हाट इज दैट? लेट मी राइट हियर। ओके, इफ both the route has same AD, then it prefer to use protocol metric. ओके, तब ये क्या करेगा, प्रोटोकॉल, उस इंडिविजुअल प्रोटोकॉल की मैट्रिक देखेगा। अब यहां पर RIP प्रोटोकॉल यदि यूज करते हैं तो RIP का मैट्रिक क्या है? RIP मैट्रिक इज इक्वल टू लिस्ट हॉप काउंट। लिस्ट हॉप काउंट, तो हॉप काउंट का कंसेप्ट है। हॉप काउंट मतलब उस रूट में कितने हॉप्स है। तो R1 ये रूट को कैलकुलेट कर रहा है, तो ये R1 से R2 के बीच, R3 के बीच में कितने हॉप है? 0। R1 से R3 के बीच में इस रूट में कितने हॉप्स है? 1। तो इस रूट में 1 है, इस रूट में 0 है, तो कौन सा लोवेस्ट है? ये, तो ये इस रूट को प्रेफर करेगा इफ प्रोटोकॉल इज द सेम। समझ में आ गया? All right, so it will work in this way. Now if both the route has got the same hop count, then अभी यहां पर इस रूट में 2 हॉप है, इसमें 1 है, तो ये जिसमें लेस, जिस रूट में लेस नंबर ऑफ हॉप है उसको प्रेफर करेगा। बट थर्ड कंडीशन, इफ बोथ द रूट हैज गॉट द सेम हॉप काउंट, इस रूट से भी हॉप्स जो है 1 है और इस रूट से भी हॉप्स जो है वहां पर जाने के लिए 1 है, then automatically it will perform load balancing, round robin load बैलेंसिंग। इट परफॉर्म्स राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग। मतलब क्या होगा, इधर भी एक हॉप है, इधर भी एक हॉप है, तो ये आधा आधा ट्रैफिक, एक पैकेट इस रूट से जाएगा, एक पैकेट, जो भी टोटल लोड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ लोड। राउंड रॉबिन दैट मीन्स इक्वल, सो इक्वली ये लोड बैलेंस स्टार्ट कर देगा। दिस इज योर डिस्टेंस वेक्टर कैपेबिलिटी।
Okay, so it will performs round robin load balancing. Now the condition is यहां पर यदि 2 Mbps की लिंक है, यहां पर 2 है, तो इस रूट से भी 2 होनी चाहिए. सो कंडीशन hop count and bandwidth must be same. ओके, दोनों रूट की हॉप काउंट और बैंडविड्थ ये दोनों सेम होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए. हॉप काउंट भी सेम होना चाहिए और लिंक्स की बैंडविड्थ भी सेम होनी चाहिए. इफ इट इज, देन इट विल परफॉर्म राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग. And if it is a RIP protocol, it can performs with 6 equal roots. ओके, ये 2 रूट्स हो गए, ये तीसरा रूट हो गया, ये चौथा रूट हो गया, ये पांचवा रूट हो गया. ऐसे 6 इक्वल रूट के साथ एट अ टाइम ये लोड बैलेंसिंग कर सकता है. 6 मैक्सिमम रूट्स के साथ एट अ टाइम लोड बैलेंस कर सकता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर नहीं, आरआईपी डिस्टेंस वेक्टर का ही पार्ट है. आरआईपी 6 कर सकता है और दूसरे अलग अलग प्रोटोकॉल्स की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं. EIGRP can do with the 4 equal roots load balancing. All right, so that was a common distance vector things. Now we will talk about RIP routing protocol. So especially RIP routing protocol कैसे काम करता है. Okay, which is not part of CCNA, but this is very important क्योंकि CCNP वगैरह में RIP है. पहले इसके जस्ट पहले वाले CCNA में RIP वगैरह भी था, RIP EIGRP. सो RIP राउटिंग प्रोटोकॉल्स के 2 वर्जन्स हैं. RIP ओके वर्जन 1 एंड RIP वर्जन 2. सो RIP वर्जन 1 जो है वो क्लासफुल है, मतलब सारे नेटवर्क एक ही क्लास के होने चाहिए. 192 एक ही, 192 168 10 20 30 और सबका एक ही क्लास है, एक ही क्लास के सारे नेटवर्क्स होने चाहिए. ओके, बट RIP वर्जन 2 इज अ क्लासलेस. ओके, ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है. कुछ नेटवर्क क्लास ए के हैं, कुछ क्लास बी के हैं, ऐसा हो सकता है. यहाँ पर मैं 10.1.1.0 ये क्लास ए का सबनेट ले लिया, यहाँ पर कुछ और ले लिया 172.25.16.0/20. अलग अलग क्लासेस में ले सकता हूँ. ऑलराइट, दिस इज क्लास RIP वर्जन 2. ओके, क्लास वर्जन 1 नो मास्क. ये जब अपडेट सेंड करता है, ये राउटर अपने नेबर को अपडेट सेंड करेगा तो सिर्फ नेटवर्क भेजता है, उसके साथ सबनेट मास्क नहीं भेजता है, क्योंकि वो अज्यूम कर लेता है कि जो मेरा सबनेट मास्क है वही उसका भी है, क्लासफुल है, क्यों भेजे. ये वर्जन 2 क्लासलेस है, तो ये 172 वाला नेटवर्क है, इसका सबनेट मास्क कुछ और हो सकता है, यहाँ पर क्लास सी इसका कुछ और हो सकता है, इसलिए सबनेट मास्क भी भेजना जरूरी होता है. मास्क इंक्लूड. ओके, दिस इज, ये 2 डिफरेंसेस है दोनों में. ओके, नाउ no IPv6, it supports IPv6. ओके, तो इसी को RIP-NG भी बोलते हैं, ऐसा RIP-NG. ओके, अब दोनों में कॉमन चीजें क्या है, कुछ कॉमन चीजें. RIP सपोर्ट 15 हॉप काउंट, मतलब ये एक राउटर से इसके बीच में ये एक हॉप है, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, मैक्सिमम इतना बड़ा रूट सपोर्ट करता है जिसमें मैक्सिमम अप टू 15 हॉप्स हो, उससे ज्यादा नहीं. ये आपका RIP है. सो ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ही सूटेबल है. एंड इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. इसका AD ऑलरेडी मैंने बताया है, AD इसका 120 है, हॉप काउंट इतने सपोर्ट करता है. ओके, ये राउटिंग प्रोटोकॉल एवरी 30 सेकेंड अपना राउटिंग टेबल नेबर को भेजता है, हर 30 सेकेंड में. राउटिंग अपडेट आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड में अपना राउटिंग टेबल नेबर को भेजता है, भले ही कोई चेंज हो या ना हो. दिस इज RIP.
All right. So that's all. This was the conceptual discussions now. Now further to the topic practical, we'll see in the next class tomorrow. All right, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो it will go another 1 hour. So we will do it tomorrow. All right. So join 9 o'clock sharp. Anyone has got a queries? यदि किसी को कोई queries हैं पूछ सकते हैं. If anyone has got a queries, you can ask me. Anyone has got queries here? Sir, just show the notepad, please, sir. Mm-hmm. Just display the notepad, sir. Broadcast. No, sir, notepad, please, sir. Notepad. Yes. Okay, this is a notepad. Yes, thank you, sir. All right, so yeah, so that's the basic things. Okay, RIP support. Okay, if both the root has got same metric, then it will perform round robin load balancing. Okay, RIP can balance load with max 6 equal roots. Okay, this is RIP. Right, so we will discuss a little more about RIP tomorrow, and we'll see practically how to configure this. Very, very interesting. Any queries, any questions? How is your understanding of this things here? Is it good?